Yes, good morning everyone. Welcome to the class, grade 11 political science students. हाँ जी, we are continuing same book, book 1 Constitution at Work, and chapter we have started chapter 1 Constitution, why and how. Why क्यों चाहिए था हमें, and how बना कैसे था. तो basic these two things we will read from this chapter. We have done definition of constitution, short answers for constitution, and two functions of constitution. Why do we need constitution? What is the role of constitution? Functions of constitution. These two things we have done. हाँ जी, first function that we have done, that was coordination and assurance. Let me recapitulate. Coordination मतलब as the different kind of people are living here, तो different kind of people में coordination करना था. Different kind of people, if diverse kind of people groups are living here, it means conflict होंगे तो उनको सुलझाना पड़ेगा. सुलझाने के लिए there will be laws, तो फिर laws बनेंगे, right? So these things we have done in first point. Second we have done, बेटा open your book, साथ में book खोल लो. Specification of decision making power. स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कौन कौन डिसीजन में इन्वॉल्व होगा. बेसिक सी बातें बता रही हूं मैं आपको. यू नो टू लर्न अबाउट ओनली 2-3 थिंग्स, बेसिक थिंग्स ऑफ द पॉइंट. ओके, 10 थिंग्स यू कैन ऐड योरसेल्फ, खुद ही ऐड कर सकते हो आप पॉलिटिकल साइंस में. ओके, नाउ द बेसिक थिंग्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स मींस पावर्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है, आगे पावर्स दे दी, बट पावर किस किस को किस किस के रिगार्डिंग दी है, दिस इज द थिंग. Okay, this we have done yesterday. Now limitation on the powers of the government, this we have started, I think we have not done. Am I right? Yes. Okay, now limitation on the powers of the government, ये तीसरा काम है कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन ये भी करता है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है. गवर्नमेंट एक बहुत गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट की पावर को लिमिट ना किया जाए ना, तो वो सोए सोए उठ के एक और बिल पास कर देगी, उसके बाद अगला बिल और पास कर देगी. तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है टू लिमिट द गवर्नमेंट्स पावर. अगर नहीं होता ना कॉन्स्टिट्यूशन, देन आवर गवर्नमेंट विल बी डिक्टेटर. फिर डिक्टेटर हो जाना था हमने, मिलिट्री रूल हो जाना था, आर्बिट्रेरी रूल हो जाना था. So this is the third function to limit the powers of the government. Now show me thumbs up if heading is clear to you. Then we will move forward. चलो, थैंक यू वेरी मच. हाँ जी, गुरकीरत के पास बुक नहीं है, सरबजोत के पास बुक नहीं है. मनप्रीत स्टार्ट रीडिंग बेटा. Limitation on the powers of the government. But this is really not enough. Suppose you decided who had authority to make the decision, but then authority to pass a law that you thought was particularly unfair. It is पेटेंटली for अनफेयर, habit पेटेंटली you अनफेयर. अब मान लो आप किसी को ड्यूटी देते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ड्यूटी है लॉ बनाना, पर आपको लगता है या बाद में उनको रियलाइज हुआ कि इसकी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए थी लॉ बनाने की, दिस इज अनफेयर, देन अगेन देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन हु विल मेक द लॉ and who will limit the power of the government. Yes, Manpreet. you from practicing your reason for practically your reason for including or enjoyed that clothes of a critical color were prohibited or that you were not free to sing a current song or the people who belongs to a particular group castle or region caste or region would always has to serve other and would not be allowed to entreat any property or the government could be hasted someone or that only people of good skin color would allowed it to draw bottom from the well. You Wait, 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 observably wait, think wait, the बेटा law. wait. नाउ इसने पढ़ा, ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है इन लाइनों में, सिंपल सी लाइन है कि हमने गवर्नमेंट की पावर को क्यों लिमिट किया. ऐसा ना हो कल गवर्नमेंट सोए सोए उठ जाए तो सबको बोलेगी गवर्नमेंट के सारे सब लोग फुल स्लीव शर्ट पहनेंगे. आज मंडे है तो सब लोग ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे.
है ना, आज संडे है तो नो फास्ट फूड, सारे लोग गुरुद्वारे जाएंगे। हाँ श्रेया बेटा, वांट टू से समथिंग? कल कर लिया जी, कल कर लिया था ना, हाँ मुझे पता, मैं रिकैप्चुलेट कर रही थी। तो if the government will pass that kind of unjust law, like Manpreet ने पढ़ा, it prohibited you from practicing your religion or intents, or it is enjoined that clothes of the certain color were prohibited. कोई कोई अब अगर मुझे कह दे कि ब्लू कलर नहीं पहनना, पिंक नहीं पहनना, ग्रीन नहीं पहनना, ग्रीन मेरा फेवरेट है, तो ऐसे ऐसे अगर कलर वो बोलेंगे नहीं पहनना, या एग्जाम्पल दिया मनप्रीत ने, यू वर नॉट फ्री टू सिंग सर्टेन सॉन्ग, आप गाना नहीं गा सकते हो, आप गाना नहीं सुन सकते हो, आप ये मूवी नहीं गा सकते हो, आप इस पे डांस नहीं कर सकते हो, आप ये रिलीजन नहीं अडॉप्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर इस एरिया में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हो, चंडीगढ़ में मकान नहीं बना सकते हो। तो इफ गवर्नमेंट इज पुटिंग दीज काइंड्स ऑफ बैन ऑन द पीपल, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल बी डिक्टेटर। ये तो हमारे लीगल राइट, तो हमारे नेचुरल राइट है, लीगल नहीं नेचुरल राइट है ये हमारे। मैं आपको पढ़ाऊंगी अगले चैप्टर में नेचुरल राइट क्या होते हैं। श्रेया वांट टू से समथिंग बेटा, यू रेज्ड हैंड। Okay, earlier you have raised. Okay, so these are the natural right. ये हमारे natural right है, right to life जैसे कि natural right है। तो अपनी पसंद का खाना पीना, पहनना, गाना, गाने सुनना, डांस करना, ये natural rights हैं हमारे। तो अगर गवर्नमेंट इस पे भी बैन करती है तो it means फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी बेटा, कंटिन्यू। हाँ रजा, पढ़ो बेटा। ma'am, from the limitations or the next paragraph? Or that last fourth line, or that government could arbitrarily मतलब military rule। हाँ जी बेटा। That government could arbitrarily arrest someone or the only person of a certain skin color would be allowed to draw water from wells. You would obviously think these laws were unjust and unfair, and even though they were passed by a government that had come into existence based on certain procedures, there would be something obviously unjust about the government enacting these laws. ठीक है, so this is the third function of the constitution, is to set some limits on the government can impose on the citizen, and these limits are fundamental in the sense of the government may never trespass them. ऐसा नहीं है कि जो मर्जी वो रूल्स पास कर सकते हैं, because if there is constitution then these kind of rules will be trespass. हम trespass होता है दबा देना, उनको कर्ब कर देना, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर्ब नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन है। Now beta, this paragraph you have put in bracket, this will be the answer when you will write the question na, this will be the answer। इससे पहले वाला जो कुछ भी दिया है that is example only for your information, but if you will write answer in your copy then this paragraph, ये मैंने कल समझा दिया था। okay, हाँ जी, aspiration and goals of society। Now next function, aspiration and goals of society। Let me clear the heading first। अब सोसाइटी के गोल क्या होने चाहिए? हाँ, एस्पिरेशन क्या होती है? तो these also things mentioned in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना हम लोग, मतलब गाइड के बिना, जैसे पेरेंट्स के बिना, गाइड के बिना हम कुछ भी नहीं, रोल मॉडल के बिना लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ऐसा रोल मॉडल है, ऐसा गाइड है हमारे पास। तो दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन, फोर्थ फंक्शन, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। हाँ जी अविशी, स्टार्ट करो बेटा। संजीव, तनिष, कैमरा ऑन। यस अविशी, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। Aspirations and goals of a society. Most of the older constitutions limited themselves to decision-making power and setting some limits to government power. But many 20th century constitutions. You have to stop after every full stop. Most of the older constitution limited themselves largely for allocation, decision making power and setting some limits on the government power। पुराने टाइम में ऐसा होता था, कुछ पुराने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं। हम यहाँ गवर्नमेंट की पावर को लिमिट तो करते हैं लेकिन लोगों को सुनते भी हैं। आपको दिख रहा होगा शायद अगले वाले कार्टून पे, आपको ना आपकी बुक में पंडित जवाहरलाल नेहरू पे बहुत सारे कार्टून मिलेंगे। +2 में भी आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पे बहुत सारे कार्टून मिलेंगे। ये सिर्फ बच्चों को, दिस इज एनसीईआरटी बुक, ठीक है, यहाँ हर पिक्चर का एक मीनिंग है, ऐसे नहीं है ये एनसीईआरटी बुक, यहाँ हर पिक्चर का एक मीनिंग है।
अब as the content is, so as the picture is, and the information related to the picture will be explained. ठीक है, तो आप थोड़ा सा आपको ऐसे क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा आपको वो फीलिंग लानी पड़ेगी, जो हम पढ़ रहे हैं वही रिलेटेड टू पिक्चर होगी. अगर नहीं समझ पाओगे तो कुछ भी पिक्चर में समझ नहीं आना. ठीक है, हाँ जी, कंटिन्यू अविशी. But many 20th century constitution, of which the Indian constitution is the finest example, also provide an enabling framework for the government to the certain positive things to express the aspirations and goals of the society. Yes, now she The has Indian said, constitution. wait, beta. But many 20th century constitution, of which the Indian constitution is the finest example. अब बार बार ये पढ़ोगे, finest example words, best constitution, Indian constitution. Also provide an enabling framework for the government to do certain positive things. एक ना framework दे दिया है. आपको पता, एक ना frame होता है ना, जैसे बुक का एक बॉर्डर होता है, आपकी कॉपी का एक बॉर्डर होता है. जब आप ड्राइंग भी करते हो ना, तो पहले आप फ्रेमिंग कर लेते हो. आपको जो कुछ भी ड्रॉ करना है ना, तो आप उस फ्रेम में ही करते हो. पहले आप उसका आउटर बॉर्डर तैयार करते हो, ठीक है, फिर आप उसमें वो लैंडस्केप बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, बट आपको पता होता है कि जो मैंने बॉर्डर बना लिया ना, फ्रेम बना लिया, इस फ्रेम से बाहर नहीं जाना है ना. आप फोटो क्लिक करते हो ना, तो ऐसे कैमरा फोकस करते हो, तो आपको पता रहता है कि इतने कैमरा में ही हमारी फोटो आनी है, तो आप उसको फोकस कर लेते हो. तो ये याद रखना वर्ड हमेशा के लिए, फ्रेमवर्क. आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ये लाइन डालनी है. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू द गवर्नमेंट के लो जी इसमें काम करना, इस दायरे से बाहर मत जाना. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड बॉर्डर्स. अब आप ये कॉपी है आपकी, हाँ, आप देखो, जब आप पेपर भी करते हो ना, आप देखो एक यहाँ बॉर्डर लगा है, तो आप अपनी आंसर शीट पे ना यहाँ भी एक बॉर्डर लगाते हो. तो इट मीन्स यू विल राइट हियर क्वेश्चन नंबर 1, आंसर, सीरियल नंबर, जो भी लिखते हो, एंड हियर यू विल राइट द मेन थिंग्स. और जब आप यहाँ लाइन लगा के लिखते हो तो मैथ्स वगैरह में रफ वर्क करते हो या कैलकुलेशन कर लेते हो. बट इफ यू draw one line over here, it means this is very much clear to you that you will not go beyond this line. आपको इसी फ्रेम में लिखना है. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक फ्रेम बनाकर दे देता है, मतलब ऐसी कॉपी नहीं बना के देता, मतलब ऐसा एक फ्रेमवर्क बना के देता है कि गवर्नमेंट को जितने भी कानून बनाने हैं इस एरिया के अंदर बनाने हैं. कल को इसके बाहर जाके ये मत कह देना कि ब्लैक कलर, पीपल विल नॉट वियर ब्लैक कलर, कि मंडे को सारे ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे. तो इस फ्रेम में काम करना है, जितना जरूरी है उतना ही काम करना, उससे बाहर नहीं करना. तो हाईलाइट करो ये लाइन, दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू द गवर्नमेंट टू लिव विद इन. इस फ्रेम से बाहर नहीं जाना. एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी. हाँ जी, हाँ रजा, कंटिन्यू बेटा. यस. Ma'am, the aspirations paragraph. Yes, definitely beta, you have left only. No ma'am, Avishi was reading actually. Yes, second line you have read na beta, page number 6, second line you have read, framework wali, that only I have cleared. Now please read next line. The Indian Right. Constitution was particularly innovative in this respect societies. Wait. You have to stop after every line. एक line बहुत important है. यहाँ पर एक word आया innovative. Innovative का meaning लिखो something new. कुछ नया लाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. वही नहीं है जो 70 साल पहले था, 1950 में बन गया, 2020 में भी वही रहा. और आपको पता है एक चीज बताऊं हर रजा, आपने ये लाइन पढ़ी है, जो चीज, जो इंसान, जो कंपनी, जो ग्रुप वक्त के साथ नहीं चलता ना, वो खत्म हो जाता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर रजा ने पढ़ा, बहुत बढ़िया है. वो कुछ इनोवेशन लाता है, कुछ नया लाता है. जो कुछ नया नहीं लाते ना, वक्त के साथ नहीं चलते, वो टूट जाते हैं. एग्जाम्पल दूं मैं आपको नोकिया फोन की. जब मैं आपके जितनी थी ना, ग्रेड 11-12 में, मेरे पास एक फोन होता था नोकिया. तब एक ही फोन होता था सबके पास, नोकिया 3310. बड़ा अच्छा फोन था, उसमें सिर्फ एक ही गेम हुआ करती थी, स्नेक वाली. तब हमारा फेवरेट फोन था वो, सबके पास वही फोन होते थे. उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त बदला,
न्यू कंपनीज आ गई, दे लॉन्च डिफरेंट काइंड ऑफ फोन्स। आज देखो मार्केट में कितने फोन है, सैमसंग की कितनी सारी तो गैलेक्सी आ गई, मुझे लगता है आसमान में उतनी सारी गैलेक्सी नहीं है जितनी सैमसंग ने निकाल दी है है ना। अच्छा, उसके बाद रियलमी आ गया, लेनोवा आ गया, ओप्पो आ गया, वीवो आ गया, पता नहीं कौन कौन से फोन आ गए, बट विद स्मार्ट फीचर्स। एक 10,000 रुपए का भी फोन लो, ड्यूल सिम है और उसमें कितने सारे फीचर्स हैं। ओप्पो का कैमरा कितना अच्छा है, प्रोफेशनल कैमरा भी इतने अच्छे नहीं होते जितना ओप्पो का कैमरा है। तो वक्त के साथ ये लोग चले। आज नोकिया कहाँ है, डिलीट हो गया वो, बच्चों को पता भी नहीं होगा, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि नोकिया फोन कोई होता था। तो नोकिया नहीं बनता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल दी मैंने आपको, याद रखना हमेशा। हाँ, एग्जाम्पल दी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नोकिया नहीं बनता, अगर बना होता तो बहुत पीछे रह जाता। अगर नोकिया वक्त के साथ चलता, अपने में फीचर्स डालता, कुछ एडवांस होता, इनोवेटिव डालता, इनोवेटिव मतलब समथिंग न्यू डालता, तो आज नोकिया भी बिक रहा होता मार्केट में, पर वो वक्त के साथ नहीं चला। सेम कंडीशन अप्लाई इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लाइक दैट के गॉड का कहा हो गया, भगवान ने जो कह दिया। अब ग्रंथ है ना हमारे, उनमें जो एक बार लिखा है वही लिखा है। भगवत गीता चेंज करते हैं? नो। गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा चेंज करते हैं? नो। बाइबल में जो लिखा चेंज करते हैं? नो। जो हमारे श्लोक हैं वो वैसे ही हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भगवान का कहा नहीं हो गया। वी डू अमेंडमेंट्स, अगर ना करते तो बेकार हो जाता आज तक। अभी हमने 100 चेंजेस कर लिए हैं, 102, पता नहीं 104 के 102, आई विल टेल यू। तो अगर ये ना करते ना, आज ये बहुत पीछे चला जाता। तो दिस इज द लाइन हर रजा ने पढ़ी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ न्यू लाता है। एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी डिमांड करती है ना, सोसाइटी डिमांड करती है। आप आज जो मांग रहे हो ना, आपके पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से वो नहीं मांगा था। उन्होंने मैंने अपने टाइम पे एक्टिवा नहीं पेरेंट्स से मांगी थी, मैं साइकिल मिल जाता था तो हम खुश थे। नोकिया फोन जिस दिन हमें मिला था, खुशी के मारे मुझे नींद नहीं आई थी कि मेरे पास अपना फोन है। आप आज जो चीजें डिमांड करते हो पेरेंट्स से, जरूरी नहीं कि आपके बच्चे भी आपसे वही चीज डिमांड करें। आप मोबाइल मांगते हो, आपके बच्चे आपसे लैपटॉप मांगेंगे। तो आपको लगेगा कि उस टाइम में अगर मेरे पास 20,000 का फोन मिलता था तो मुझे खुशी होती थी, बच्चों को 50,000 का लैपटॉप चाहिए। तो इफ यू विल नॉट चेंज विद द टाइम, देन यू विल ब्रेक, आप टूट जाओगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ चलता है तो जिंदा है। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, वो जिंदा है। सोसाइटी जो मांगती है आज भी पूरा करता है। ऐसे तो नहीं हमने 100 चेंजेस कर दिए। अब हमें लगा कितने सालों से ये था, आप लोगों ने भी ग्रेड 10 में पढ़ा था 370, आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेट है, कोई लैंड नहीं खरीद सकता। कितने सालों से वो चला आ रहा था। लो जी 2014-15 में वो डिलीट हो गया। अब सेकुलर स्टेट कब से चला आ रहा था, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो आज भी है। अगर लगता तो हम चेंज कर देते। तो दिस इज द लाइन दैट एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी मांगती है हम वही करेंगे। नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इराक की तरह हो जाएगा, कैसल ऑफ कार्ड्स, आज बनाया सुबह टूट गया। हाँ जी बेटा, हर रजा कंटिन्यू। Societies with the deep and entrenched inequalities of various kinds will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms and inequality of or deprivation. हाँ, डेप्रीवेशन के लिए भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बोला है। ऐसा नहीं कि बार बार मैं आपको यही पढ़ा रही हूँ कि गवर्नमेंट को लिमिट करता है, गवर्नमेंट को लिमिट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को लिमिट करता है। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ये भी अलाउ करता है कि कुछ नया भी डालो उसमें, पीपल को, सोसाइटी को जिस चीज की जरूरत है वो भी डालो उसमें। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक जिंदा डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इट इज नॉट डेड डॉक्यूमेंट, एक बार बन गया तो बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब एग्जाम्पल एक पढ़ोगे, गुरकीरत, विल यू रीड एग्जाम्पल? मुझे आपसे पढ़वाना है। कौन सी? एग्जाम्पल पेज नंबर 7 पे आ जाओ। बुक नहीं है। अच्छा देख, एक बात कहूँ गुरकीरत, हर रजा के पास भी बुक नहीं है।
पता कहाँ से पढ़ रही है? उसने PDF डाउनलोड करा हुआ ग्रेड 11 की बुक का, तो वहां से वो पढ़ रही है। तो तू भी डाउनलोड कर ले, मैं एक लिंक भेजूंगी आज तुझे, ठीक है? एक लिंक भेजूंगी मैं। हाँ जी सिमरनप्रीत, कंटिन्यू बेटा, टेल मी एग्जांपल एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। मैम आई आल्सो डोंट हैव बुक। अच्छा तो फिर फोन में अभी कर लेते हैं ना, फिर 2 मिनट लगते डाउनलोड करने में। हाँ जी गुरसिमरन, कंटिन्यू बेटा एग्जांपल। मैम बुक नहीं है। ओके जसनूर, देखो तो ये महाराज की तरह बैठा है। जसनूर यस मैम। कंटिन्यू बेटा। मैम कहाँ से? पेज नंबर 7 फ्रॉम द बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल? हाँ जी फॉर एग्जाम्पल, पहले सीधा होके बैठ जा। हाँ अभी हम लॉयर नहीं बने हैं, अभी हमारे इतने ठाट बाट नहीं है, ठीक है? हाँ जी कंटिन्यू। India aspires to be a society that is free of caste and discrimination. If this is our society aspiration, the government will have to be enabled or empowered to take all the necessary steps to achieve this goal. चलो In a हमारी country like सोसाइटी South में, हमारी Africa, कंट्री में हमारा ये गोल है कि सोसाइटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फ्री होगी। तो मेरे कहने से, आपके कहने से थोड़ी ना डिस्क्रिमिनेशन फ्री हो जाएगी, है ना? मतलब ढिंडोरा पीटने से कि हम लोग ऑल आर इक्वल, तो हम इक्वल नहीं हो जाएंगे जब तक इसके पीछे कोई लॉ नहीं होगा, है ना? जब तक इसके पीछे कोई पावर नहीं होगी। तो जो सोसाइटी डिमांड करती है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो, लिख के फिर उसका पनिशमेंट भी डाल दो। तो अभी देखो ना, इक्वालिटी फॉर ऑल द कास्ट पीपल आर इक्वल, है ना? अब ढिंडोरा पीटने से ऐसा कुछ नहीं होना था। अब जो इसने लाइन पढ़ी है जसनूर ने, उसका मतलब ये है कि ये लाइन अगर लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो साथ में पेनल्टी भी डाल दो। सोसाइटी जो डिमांड करती है वो चीज भी उसमें डाल दो। अब BR अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दिया था SC/BC पीपल को, वो तब तक नहीं हिले थे जब तक कि दिस थिंग वाज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो फॉर द टाइम बीइंग था 10 साल के लिए, फिर आगे एक्सटेंड किया 10 साल के लिए, बट टिल नाउ पीपल आर गेटिंग रिजर्वेशन बिकॉज अभी सोसाइटी की वो डिमांड है, ठीक है? हाँ जी जसनूर। which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination. हाँ जी, More in a country like positively, South Africa which had a deep history of racial discrimination. अच्छा grade 11, can you tell me any name from South Africa? Any positive name of South Africa? Thank you very much. हाँ जी सरबजोत, this you have done in grade 9, freedom fighter. नेल्सन मंडेला। थैंक यू वेरी मच, आई एम प्राउड ऑफ यू सरबजोत। नेल्सन मंडेला, अब साउथ अफ्रीका में इन्होंने बहुत कुछ किया था नेल्सन मंडेला ने, राइट? तो विच हैड अ डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यस कंटिन्यू। more positively, a constitution may enshrine the aspiration of a society. The farmers of the Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect, minimum material well-being, education, etc. बहुत कुछ The पढ़ दिया Indian जसनूर ने, Constitution. मैं आपको क्लियर करती हूँ, बहुत कुछ पढ़ दिया आपने। नाउ सी all the lines are important. Now he has read more positive. अब साउथ अफ्रीका की बात हो गई है ना, उन्होंने मतलब नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी लाइफ 32 इयर्स उन्होंने अपने दे दिए थे सोसाइटी को। साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी, आप ये कह लो, जो काम हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने किया ना, ही स्पेंट 32 इयर्स। ग्रेड 10 में मैंने आपको पढ़ाया था, 15 में वो आए थे, 47 में आजादी मिली थी, ऑलमोस्ट 32 इयर्स। नेल्सन मंडेला ने भी यही काम किया साउथ अफ्रीका में, अपनी लाइफ, अपने 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 शौक, अपनी चॉइस, अपनी लाइक, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था उनके लिए। तो साउथ अफ्रीका आज भी याद करता है। देखो सरबजोत को भी पता है, अगर एक फ्रीडम फाइटर का नाम पूछे तो नेल्सन मंडेला। नाउ इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड एनेबल्ड टू गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सबसे पहले उन्होंने, साउथ अफ्रीका ने यही डाला, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब इंडिया की अगर बात करें तो गुरजसनूर ने पढ़ा, इन इंडिया मोर पॉजिटिवली कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। हर कॉन्स्टिट्यूशन वही जिंदा रहेगा जो सोसाइटी की डिमांड को डालेगा,
इग्नोर करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है, फिर आपके मेरे लिए पढ़ने का मतलब ही क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। Now, the farmers of Indian Constitution, the framers of Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that it's necessary for them to lead a life of minimal dignity and social respect. आपको पता जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, हमने मतलब वो पैनल नहीं, मैंने नहीं, पैनल बैठा था पूरे डेलीगेट्स बैठे थे, राइट। तो इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर, जिन्होंने फ्रेम किया, जिन्होंने मेक किया, जिन्होंने बनाया, अपने दिमाग में सारी बातें रखी। ऐसे ही नहीं कि 4 दिन 10 दिन में 2 महीने में बन गया, 3 साल लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। रोज एक नई बात आती थी, रोज उस पर डिस्कशन होती थी, नेगोशिएशन होता था, डिबेट होती थी अच्छी खासी, फिर वो चीज डाली जाती थी, फिर प्रूव भी करना होता था कि कल को अगर कोई पूछ ले ये चीज क्या है, इसका ये नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर जो डिबेट हुई थी ना, डूज एंड डोंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, वो सारे के सारे लिखे गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से बनाया गया। जो हमारे फ्रेमर थे ना, पहले से वो मतलब वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी बनी थी हमारी, उनके दिमाग में पहले से ही ये बात थी कि आगे चल के ये वाली बातें लोगों के दिमाग में आएंगी। तो जो हमारे फ्रेमर्स थे ना, उन्होंने सबसे पहले ये चीज डाली, पहले तो यही चीज डाली कि सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, एक बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, एक 10 साल के बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, डिग्निटी का मीनिंग लिखो सेल्फ रिस्पेक्ट। बार बार मैं नहीं बताऊंगी मीनिंग, काफी सारे ऐसे मीनिंग आएंगे, कॉमन मीनिंग, कॉमन वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो हमारे फेमस ने कहा सबसे पहले तो इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मिनिमम मटेरियल वेलबींग होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम चीजें सबको मिलनी चाहिए, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। तभी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एजुकेशन फ्री है। और अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी होटल ढाबे पे काम करते नजर आए ना, तो वो मालिक को अरेस्ट करेंगे, उस बच्चे को नहीं। और आपको पता है एक चीज बताऊं, और मैं स्पेशली बॉयज, एक और प्रोविजन आई है, if any boy or girl also will be caught driving without license, then dash will be arrested। सरबजोत हंस रहा है, who will be arrested? देखो तो जरा, रेजो हैंड जिसको पता है, किसको अरेस्ट करेंगे? सरबजोत बता, किसको अरेस्ट करेंगे? गुरकीरत से पूछते हैं। हाँ गुरकीरत, यस, किसको अरेस्ट करेंगे अगर कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव कर रहा है तो, 18 साल से कम? हमें ही करेंगे। आपको, मान लो आप और आपका फ्रेंड जा रहे हैं, आपको अरेस्ट करेंगे। जो चला रहा। अच्छा, रॉन्ग आंसर है। सरबजोत से पूछते हैं। सरबजोत बता, किसको अरेस्ट करेंगे? मॉम डैड। वेरी गुड, यस करेक्ट आंसर। वो पापा को ले जाएंगे, बाइक दी है, आपको कुछ नहीं कहेंगे। गुरकीरत, वो पेरेंट्स को ले जाएंगे। ये न्यू प्रोविजन आई है, ऐसी ऐसी न्यू प्रोविजंस आती रहती है, हमें आपको पता नहीं चलता ना, ये कुछ पॉलिटिक्स के काम होते हैं, तो ये चलते रहते हैं। तो मॉम डैड को अरेस्ट करके ले जाएंगे वो। गुरकीरत, आप आराम से घर आ जाओगे बुलेट लेकर। तो न्यू प्रोविजंस आर हेयर, ठीक है। हाँ जी, कंटिन्यू बेटा, मान्या कंटिन्यू बेटा। The Indian Constitution enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. As we go on studying the Indian Constitution, we shall find that such enabling provisions have the support of the preamble to our Constitution, and these provisions are found in the section on fundamental rights. अच्छा, ये चैप्टर 3 है हमारा। ये चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट्स डाले हैं कि लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी, और क्या क्या मिलेगा, ये 3rd चैप्टर में डाले हैं। और आपकी बुक में भी इन्होंने इसका 3rd चैप्टर ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर 3rd में लिखा कि लोगों के फंडामेंटल राइट कौन से होंगे, और वो सबको मिलेंगे, वो सबको मिलेंगे। हाँ जी बेटा, कंटिन्यू। The directive principles of state of policy also enjoin government to fulfill certain aspirations of the people. फिर उसके बाद चैप्टर 4 में इन्होंने डीपीएसपी डाल दिया। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, के क्या क्या होना चाहिए, आउट, OUGHT,
ये भी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी कि क्या क्या होना चाहिए। तो ये सब कुछ लोगों के लिए हमने डाल दिया क्योंकि सोसाइटी की डिमांड थी। सोसाइटी की वट एवर द डिमांड्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, इट शुड बी फुलफिल्ड। कहने से नहीं, इट शुड बी पुट इन द Constitution. So, मैं sum up कर रही हूँ. Fourth function of the Constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of the society and create condition for just society. Just का meaning लिखो equal. Just का meaning लिखो equal. Equality अगर बनानी है equal society तो ये Constitution में लिखेंगे. और whatever the things are written in the Constitution, no one can query. No one can put any question on Constitution, not even Prime Minister. वो framework दे दिया, उसी के अंदर अंदर काम करना है, वरना किसी में से बाहर नहीं जाना. So this is the fourth function. बेटा आप जरा उस कार्टून पे आना, पेज नंबर 7. Now my dear students, observe this cartoon for 10 seconds. Then I will ask some question. आपको जो समझ आती है मुझे आप बता देना. थोड़ा डीप मीनिंग है, थोड़ा इसमें फीलिंग लाओ, इवन रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन रिटन बिसाइड द कार्टून. ठीक है, फिर मैं आपसे पूछती हूँ. संजीव कैमरा ठीक कर बेटा. तनिष्क कैमरा ऑन. सर अब जो तू ये बुक देख ले, मैं दिखाती हूँ. जिनके पास बुक नहीं मैं कार्टून दिखा देती हूँ स्क्रीन पे. नाउ 10 सेकेंड्स का ऑन. अब मैं आपसे पूछती हूँ. श्रेया अनम्यूट करो. गुड मॉर्निंग बेटा. व्हाट यू ऑब्जर्व्ड इन द कार्टून. आपको जो दिखा बस मुझे बता दो, 2-3 लाइनें. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, उनके एक साइड जो पीपल है वो पहले बताओ पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे बनाए हैं. 2 फेसेस दिखाए हैं यहाँ पे. ओके देन साइड पीपल बैठ के ट्रम्पेट बजा रहे हैं और साथ में वो जय जय गण मन रिसाइट कर रहे हैं, और दूसरे साइड पीपल बहुत लाउडली वंदे मातरम रिसाइट कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर थोड़ा बताओ पंडित जवाहरलाल नेहरू की हालत कैसी है फिर. मैम जो जय जय मन है उनको वो मतलब कुछ कह नहीं रहे, और जो वंदे मातरम है उनको थोड़ा शाउट टाइप कर रहे हैं. अच्छा ठीक है. नाउ श्रेया रीड द कैप्शन बिलो द कार्टून. एक कैप्शन लिखी, वो पढ़ना. The constitution makers have to address themselves to very different aspirations. Here is Nehru trying to balance between different visions and ideologies. You can identify what these different groups stand for. How do you think prevailed in this balancing act? Yes, now here you can see Pandit Jawaharlal Nehru. कैमरा नीचे, हाथ नीचे कर कैमरा से सरबजोत. हाँ, तो नाउ पंडित जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद 2 फेस. 2 चेहरे हैं, दोनों में बैलेंस कर रहे हैं. सब लोग अपना अपना राग अलाप रहे हैं. म्यूजिशियन भी देख रहे हैं और वो सिंगर भी देख रहे हैं, है ना. सिंगर है एक साइड पे और एक साइड पे म्यूजिशियन बैठे हैं. वो दोनों को देख रहे हैं, दोनों में बैलेंस कर रहे हैं, दोनों को चुप करवा रहे हैं. हाउ डिफिकल्ट द कंडीशन इज फॉर द गवर्नमेंट. क्योंकि हेड वही थे प्राइम मिनिस्टर, तो उनको दिखा दिया है. So this is the difficult condition in front of the government to make balance among all the people, not 2 kind of people. यहाँ सच में सिंगर नहीं है, सच में म्यूजिशियन नहीं है, सिर्फ ये दिखाया है कि हाउ टू बैलेंस अमंग ऑल द ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी. एंड दिस इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. चिल्ला के पंडित जवाहरलाल नेहरू पे आप +2 में भी देखोगे बहुत सारे कार्टून बने हैं. बच्चों को चैप्टर समझ आ जाए इसीलिए ये हमने कार्टून बना दिए. अच्छा एक बात बताओ, लिखना कुछ नहीं है आज, कल लिखवाऊंगी. क्या हम ऐसे कार्टून बनाकर प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ा सकते हैं? उड़ा सकते हैं. एनसीईआरटी बुक है, हाँ, ऑल ओवर इंडिया ये बुक पढ़ी जा रही है ह्यूमैनिटीज के बच्चों से. तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर का आप और आगे भी देखोगे, ग्रेड 12 में भी देखोगे, कोई 10-15 कार्टून है इंदिरा गांधी पे बेस, अच्छे से उनका मजाक उड़ाया हुआ है. तो इज इट फेयर हम मजाक में
कुछ भी कह सकते हैं? मान्या कहती नहीं। सरबजोत कह सकता है, सरबजोत कहता है यस कह सकते हैं। मनप्रीत तू क्या कहती है, मजाक में कुछ भी कह सकते हैं किसी को भी, इवन के प्रधानमंत्री को भी? कम से कम इतना ही कह दो, यस या नो, यस या नो, मैं समझ जाऊंगी। सबको थोड़ी अनम्यूट करूंगी। सुरखाब तू बता, क्या हम कार्टून में मजाक उड़ा, सही है उड़ा सकते हैं हम लोग प्राइम मिनिस्टर का? मैम अकॉर्डिंग चलो श्रेया तू बता, जस्ट यस और नो बता। मैम पर उन्होंने किसी गलत मोटिव से नहीं यूज किया। हाँ, अब मैं बताती हूँ, हम कार्टून के जरिए किसी का भी मजाक बना सकते हैं। तो आंसर इज यस, वो चाहे कोई भी हो। देखो, whenever we write any speech or any article published in the newspaper or in a book, this is not allowed. When we give speech, अब मैं चौरस्ते पे खड़ी होके किसी के खिलाफ भी स्पीच अगेंस्ट नहीं दे सकती हूँ, मजाक नहीं उड़ा सकती हूँ। बट इफ वी विल टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ कार्टून्स, इसको बोलते हैं मिनिएचर, या ऐसे वाले कार्टून, देखो अच्छा खासा मजाक उड़ाया हुआ है। आगे आप इलेक्शन चैप्टर में देखोगे अच्छे खासे नोट उड़ाए हुए हैं, मतलब ये देखो किसी के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया रखा ताश के पत्ते। तो थ्रू मिनिएचर एंड थ्रू कार्टून्स वी कैन मेक फन ऑफ एनी पीपल। जब न्यूज चैनल आता है ना, बात देखना आप, न्यूज चैनल पे ना बीच बीच में कुछ भी दिखाते हैं। एक न्यूज चैनल है तेज या पता नहीं आज तक है, वहां पर ना बीच में कुछ भी आ जाता है 2-3 मिनट का, सो सॉरी करके, है ना, आता है। एक और भी मिनिएचर सा कार्टून सा दिखाते हैं, उसमें ना हमेशा केजरीवाल का मजाक उड़ाया रखा होता है, झाड़ू पकड़ के और ऐसे वाला गमछा पहन के, और प्राइम मिनिस्टर का भी और ममता बनर्जी का भी नेशनल चैनल पे आ रहे होते हैं वो। तो पर वो मजाक उड़ाते हैं। आजकल कोरोना वायरस का बड़ा आ रहा है, किसी को वो बना देते हैं, चाइना बना देते हैं वायरस बना के, और इधर से हमारे मोदी जी खड़े हैं, और फिर मतलब अच्छा खासा वो 2-3 मिनट का अच्छा खासा मजाक, और इतना वो अट्रैक्टिव होता है ना कि वो बंदा देखे बिना रह नहीं पाता, है ना। तो दिस इज अलाउड through miniature and through cartoons. It is allowed that we can express our feeling against for the government or in favor of the government, वो हम कर सकते हैं। तो आइंदा अगर आपसे कोई पूछे कि दैट कैन वी मेक फन ऑफ और कैन वी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट थ्रू मिनिएचर एंड कार्टून, तो यू विल आंसर यस। अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता वो अलग बात है, बट हम कर सकते हैं टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। ये तो सालों से चला आ रहा है, ये तो सालों से चला आ रहा। फ्रेडरिक सूरो याद है, फ्रेडरिक सूरो ने भी अपनी पेंटिंग बनाई थी, नेशनलिज्म में पढ़ा था। कुछ भी बना सकते हैं हम लोग, एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज अ डिक्टेटर रूल इन फ्रांस, पर उसने वो पेंटिंग बना दी थी। जीसस क्राइस्ट होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी होगा, ब्रोकन पीसेस, ब्रोकन एंड शेटेड पीसेस विल लाइंग ऑन द ग्राउंड टू शो दैट एंड ऑफ डिक्टेटरशिप। तो मिनिएचर के जरिए हम लोग मजाक उड़ा सकते हैं। तो अब जब भी हम कार्टून पढ़ेंगे तो आराम से दिल खोल के पढ़ेंगे। So tomorrow we will write answer for this cartoon, 5 marks answer, and little notes I will give you for this point. Today we have done nothing, we have read only. So your homework for today to revise 3 functions of constitution, 3 or 4? 4 functions, मुझे लगता 4 ही कर लिए हमने। Okay, तो ये रिवाइज कर लेना। चलो, thank you very much बेटा। Now I am going to end up the class. Thank you बेटा।